برسوں پرانا اصول جو منصورہ کے اندر تھا ہمارے اسکول اور اسکول کے آگے کے نظام کے سلسلے میں، اس اصول سے ہٹ کر ایک نیا فیصلہ آج حضرات کے ذریعے اپنے شہر عزیز کی عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ منصورہ میں تعلیم کے لیے ہم نے ہاسٹل کو کمپلسری کیا، یہاں پر پڑھائی کے لیے ہاسٹل ضروری ہے، اور ہاسٹل کو محض اس لیے ضروری رکھا تھا کہ جو نصاب تعلیم ہم پڑھاتے ہیں تو نصاب تعلیم اس بات کا متقاضی ہے کہ اس میں بھرپور وقت رہے۔ آپ کو یقیناً یہ معلوم ہوگا، اور یہ ہمارے اس شہر کا امتیاز رہا ہے کہ یہاں سے جامعہ ملیہ منصورہ نے ملک کو تعلیم کی ایک نئی راہ دکھائی تھی، آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے۔ اب جب ہر جانب سے دینی تعلیم کی اہمیت پر گفتگو ہونا شروع ہو چکی ہے، اور لوگ مذہبی تعلیم کے شانہ بشانہ دینی تعلیم کو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ وہ دینی ادارے جو محض دین کی تعلیم دیتے تھے اب وہ اپنے یہاں اصل تعلیم کو شروع کرنے کا نہ صرف یہ کہ ارادہ کر چکے ہیں بلکہ عملاً گزشتہ سالوں سے یہ شروع ہو چکا ہے۔ دارالعلوم دیوبند جیسا ادارہ اس نے اپنے یہاں SSC کی کلاسیں شروع کر دی ہیں۔ یہ کام ہم نے 45 سال پہلے شروع کیا، اور جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا اس وقت بہت زیادہ اس نصاب تعلیم کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، اور لوگوں نے اسے ایک ناکام نصاب تعلیم بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ کا فضل رہا، اللہ کا کرم رہا کہ مسلسل کروڑوں جدوجہد اور محنت نے اس نصاب تعلیم کو کی افادیت کو اجاگر کیا، اور اب لوگ اس نصاب کو اپنا رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ اپنا رہے ہیں۔ دیکھیے، بحیثیت مسلمان ہمیں دین کا کچھ حصہ جاننا ضروری ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو کچھ ایسے علوم ہیں جنہیں ہمیں فرض عین سمجھنا چاہیے، اور ان کا جاننا ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ یہ سارے علوم ہم SSC تک اپنے تمام طلباء کو دے دیں گے۔ آپ کو آفاق اکیڈمی کے کسی بھی SSC کیے ہوئے طالب کو کھڑا کریں اور اس کے بدلے مقابل کسی عام SSC اسکول سے کسی بھی طالب کو لے کر آئیں تو ایک امتیازی فرق یہ رہے گا کہ یہ آفاق اکیڈمی کا طالب ہو جہاں SSC کے تمام مضامین میں اس اسکول کے طالب کے بالکل برابر یا کم و بیش اپنے ہر طالب کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے، لیکن یقینی طور پر یہ اس کے پاس یہ اضافہ رہے گا کہ دین کا ایک وافر حصہ اس کے پاس موجود ہے۔ اور یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم امت مسلمہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان دین سے وابستہ ہیں، دین کی جڑیں ان کے گھروں تک پہنچیں، گھروں میں دین کا ماحول ہو، اور دین کی وہ ساری معلومات جن کو ہم فرض عین کہتے ہیں اس تک ان کی رسائی میں حاصل ہے۔ اسی لیے ہم نے اسے نصاب کا حصہ کہا ہے، اور چونکہ مکمل طور پر ایک ڈوئل کورس جیسا سسٹم مکمل آپ کا SSC بورڈ ہے، اور اسی کے ساتھ یہ ساری دینیات کا نصاب ہے، دوہرا بوجھ ہوتا تھا، اور اسی لیے ہم نے اس کو ہاسٹل کو ہم نے کمپلسری کیا تھا کہ یہاں 24 گھنٹہ طلبا ہمارے ساتھ رہ کر ہمارے نظام کے مطابق رہیں گے اور اس پر شہر عزیز کا پہلا تھا، اور یہاں سے برابر اس چیز کا مطالبہ ہوتا رہا کہ ہمارے ابناء کو، ہمارے بچوں کو بھی اس نظام تعلیم سے فائدہ اٹھانے کا موقع دینا چاہیے۔
लेकिन हम हॉस्टल में बच्चों को शामिल नहीं हो सकते। बहुत ही गौर खोज करने के बाद ये फैसला हम ले रहे हैं कि अब वो हॉस्टल को जो हमने कंपल्सरी किया था कैंपस में रहने को, जहाँ हमने लाजमी करार दिया था, ये लाजमी की शर्त हम हटा रहे हैं ताकि वो तलबा और तालिबात जो शहर से आकर इस स्कूल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो आएँ और तालीम ख़त्म होने के बाद जाएँ। इसमें हमें अपने सरपरस्त हज़रात से बहुत सी ज़्यादा इस बात के लिए गुजारिश करनी पड़ेगी कि इनके तालीमी औकात पर और इनके 24 घंटे के प्रोग्राम पर मुकम्मल नज़र रखें, क्योंकि अभी देखिए हमने अभी जो टाइम टेबल बनाया है वो 24 घंटे का जो हमारे पास टाइम टेबल है वो सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक बाकायदा लिखा हुआ है। बोले और 11 बजे बच्चों को कंपल्सरी हॉस्टल में सो जाना है, सो कर फिर 5 बजे उठना है और 5 बजे से मुस्तकिल उसमें उसके खेल का भी टाइम है, दोपहर में उसके लिए आराम का भी टाइम रखा गया है, उसके खाने पीने का भी टाइम रखा गया है, हर चीज़ का ये है, लेकिन एक निज़ाम के तहत। तो तालीम हमारे इस कैंपस में एक सिस्टम के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वो आज़ाद नहीं रहता है अपने जैसे। अगर कोई तालिब शहर के अंदर है तो वो एक लिहाज से आज़ादाना ज़िंदगी गुजारता है और यही वजह है कि तालीम का जो हिस्सा उसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। बहरहाल अवाम के इसरार पर और अवाम की शदीद ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये तय किया कि हम हॉस्टल के लाजमी इसको कलदम करार देते हैं और मालेगांव शहर के तलबा और तालिबात को ये अख्तियार रहेगा तो चाहें तो सुबह आकर शाम को जाएँ और उनके पेरेंट्स, उनके वालिदैन से हम ये अपील ज़रूर करेंगे कि वो कोशिश करें कि वो हॉस्टल में रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका फ़ायदा हो। लेकिन किसी मजबूरी के तहत अगर वो नहीं रख सकते तो कम से कम घरों में इस बात को यकीनी बनाएं कि वो ज़्यादा तालीम पर अपनी तवज्जो सर्व करें। एक चीज़। दूसरा, आफाक एकेडमी अब नए एकेडमिक ईयर से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बदलाव आ रहेगा इंशाअल्लाह। हम हर क्लास को डिजिटल बनाएंगे। अब तक हमारे यहाँ ज़रिए तालीम सिर्फ उस्ताद पढ़ाता था, तलबा सुनते थे, अपने काम का इस्तेमाल करते थे। अब वो कान और आँख दोनों का इस्तेमाल करते हैं हर सब्जेक्ट, हत्ता कि हम दीनियात को भी हम डिजिटल इसमें लेकर आ रहे हैं ताकि वो तलबा को एकदम मुकम्मल तौर पर ज़हन नशीन हो जाए। दीनियात का जो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पहले पढ़ाया जाता था उसको भी हमने असरनो मुरतब किया है इस अंदाज से वो एक तत्बीकी निसाब बन जाए। तत्बीकी इस माने में कि अगर हमारा 7वीं जमात का तालिब 7वीं जमात के तालिब को क्या चीज़ देनी चाहिए, इस उम्र में उसे तहारत की मसाइल करनी चाहिए तो हम दीन का तहारत का हिस्सा उस वक्त उसको देते कि अरे इसको वज़ू करने की ज़रूरत है, नहाने की ज़रूरत है, पाक साफ रहने की ज़रूरत है, तो दीन किस अंदाज से इसकी रहनुमाई करता है। हम पहले कुरान करीम में हम 30वां और 29वां पारा तर्जुमे के साथ पढ़ा दिया करते थे। आप तमाम हज़रात को मालूम है कि 30वां और 29वां पारा मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ामीन पर मुश्तमिल है। नहीं, हमने ये तय किया कि उस उम्र में हमें तौहीद पढ़ानी चाहिए, तो तौहीद से वाबस्ता कुरान मजीद की जितनी आयतें हैं सबको एक साथ जमा करके उसे हम पढ़ाने की बात कर रहे हैं। ईमान की बात करें तो ईमान के हवाले से ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल मलाइका, ईमान की जितनी किस्में हैं उससे वाबस्ता जितनी आयतें उस ताकि तालिब जब 10वीं पास कर ले उससे अगर तौहीद पर कोई बात करनी हो तो उसका तौहीद पर यकीन और ईमान इतना पुख्ता हो कि कहीं मुतज़लज़ल न हो सके। और उसका ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान और
तकदीर पर ईमान इस अंदाज से पढ़ा दिया जाए कि वो उसके अंदर पैवस्त हो जाए। तो ये सिस्टम हम लेकर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा पूरी क्लास अगर मालूम है आपके प्रोग्राम में शामिल है कि अगर हम अपने इन मोहतरम हज़रात की एक विज़िट करा सकें स्कूल बिल्डिंग आप अगर देख लें तो बिल्कुल एक मतलब एक बदला हुआ माहौल आपको नजर आएगा। और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि इस पूरे इलाके में इस किस्म का स्कूल इस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो आपके ज़रिए चूँकि आप माशरे का एक ऐसा अहम हिस्सा है जिनके ज़रिए कौमें बनती भी हैं और माशाअल्लाह आप तमाम के अंदर वो सलाहियत है जो कौमों को बना सके। तालीम के इस मिशन में जामिया नूरिया आपकी मदद चाहता है, आपका साथ चाहता है, आपकी नुसरत चाहता है कि हम जब साथ मिलेंगे तो इंशाअल्लाह एक वो जो उम्मत का बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी काम है, बुनियादी काम है, उस काम को हम इंशाअल्लाह आसानी के साथ कर सकते हैं। इस सिलसिले में अगर आपको कुछ सवाल करना हो तो आपने जो है तो बड़ी जमात से पहली जमात से जैसे कोई मालेगा तो 4 क्लास 5 क्लास पढ़ लिया तो उसके बाद आज हाँ इसमें क्या होगा जैसे 4-5 क्लास पढ़ लिया है और उसके बाद हम चाहते हैं कि आए तो 4-5 क्लास चूँकि वो स्टेट बोर्ड का के उस हिसाब से पढ़ा है और उसको दुनिया की बुनियादी मालूमात नहीं थी, इब्तदाई जो मतलब बहुत सारी दुआएँ हैं, बहुत सारे आदाब हैं उसको नहीं मिले, तो उसको हम रेमेडी क्लास के ज़रिए उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश हमारी है कि कोई शख्स कोई तारीफ महरूम न हो। ये स्टूडेंट कैंप कितनी है बच्चों की फिलहाल? अभी तक 5.5 सवारी वगैरह तो लाने जा रहे हैं पढ़ने जैसे 10 अक्टूबर अभी नज़्म नहीं है लेकिन उस पर जो तादाद रहेगी उस पर तो हम लोग बहुत क्लासेस कहाँ तक है? क्लासेस केजी से 10 तक है 10 तक। और यही कैंपस में जूनियर कॉलेज भी है, मज़ीद पॉलिटेक्निक हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इंडिया आपका यूनानी यूएमएस हो गया। देखिए एक बड़ी खूबसूरती यहाँ पर ये है कि अगर आप अपने बच्चे को केजी में ला के एडमिट करते हैं और आप इंशाअल्लाह हमारा जो प्रोग्राम है हम आगे इंजीनियरिंग में भी PhD विज्ञान की प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से हमारा टाइप हो रहा है। तो अगर केजी में आपने बच्चों का एडमिशन किया तो इंशाअल्लाह आप चाहेंगे तो PhD तक ना से ये पूरी कनेक्टिविटी उसे यहाँ मिलेगी। SSC के बाद जो जूनियर कॉलेज का मामला है, अल्लाह फजल है कि वन ऑफ द बेस्ट जूनियर कॉलेज इस वक्त यहाँ चल रहा है। एक नई सोच और नई फिक्र के साथ मैं अक्सर वेस्टर सोच करता हूँ और शायद कभी मैंने पढ़ा था कि इसराइल की बिना में स्कूलों के अंदर छुट्टियों का निज़ाम नहीं रखा है। तो मैं सोचता था क्या हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? हमने जो जूनियर कॉलेज शुरू किया तो पहली मीटिंग जो हमारी प्रिंसिपल के साथ हुई उसमें जब मैंने सिस्टम पर बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी क्लासें संडे से शुरू होंगी सुबह 8 बजे से 4 संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये 5 दिन 8 से 4 तक क्लासें। फ्राइडे इन 5 दिनों में जो कुछ पढ़ाया गया उसका टेस्ट है। सैटरडे को 1-to-1 एक तालिब एक टीचर ये उसकी कारकर्दगी इस पर तबसरे हैं, इस पर गुफ्तगू है, इस पर तालिब को बताना है कि आपने कहाँ गलत लिखा, क्यों गलत लिखा, क्या लिखा। फिर सेंचर से तो छुट्टी का कंसेप्ट खत्म कर दिया है और मुकम्मल तरकीज़ के साथ और सही मानों में देखिए कैलकुलेशन तो यही बताता है कि
اگر یہ احساس ہمیں ہے کہ قوم تعلیم کے میدان میں پیچھے ہے، تو اگر ہمیں اپنی قوموں کے ساتھ ملنا ہے تو ان کی اسپیڈ کے دگنی رفتار سے ہم چلیں گے تب ان کو پار سکیں گے. تو اب وہ تو ممکن نہیں نظر آتا ہے، لیکن کم از کم یہ اگر ہم کر لیتے ہیں تو کسی نہ کسی حد تک ہم اس خلا کو پورا کر لیں گے انشاءاللہ. تو اس لحاظ سے ہم اچھا مکمل ہر قسم کی لائن، ہر قسم کی سہولت، اچھے سے اچھے اساتذہ، کیونکہ جامعہ ملیہ ایجوکیشن سوسائٹی کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اچھی تعلیم بغیر اچھے اساتذہ کے ممکن نہیں. تو ہم نے الحمدللہ اساتذہ کی، آپ کو مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت کیمپس میں تقریباً 27-28 PhD اساتذہ مقیم اور سب بڑی بڑی یونیورسٹیوں. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تعلیم کے اندر جب تک کوالٹی نہیں ہو تو تعلیم بے معنی. ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے، قوم کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے، اور ہمارے دونوں تو ٹیلنٹ کے سلسلے میں مشہور ہے. اس ٹیلنٹ کو صحیح رخ پر لے کے جانا، اپنے طلباء، اپنے بچوں کے اوقات کا صحیح استعمال کرنا، صحیح طریقے سے ان کی ٹریننگ کرنا، صحیح رہنمائی کرنا، یہ اگر سنجیدگی کے ساتھ ہم کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں خیر کی پوری